I request Honorable President Sir to give the floral welcome to Honorable Chairman Shri Sunil Sharma ji. Thank you, sir. I would request Honorable Chairman Sir to kindly address the students. Honorable President, Honorable Registrar, Honorable Deans, Principal, Vice Principals, learned faculty, and of course, new entrant students. Dear student, first of all, let me welcome you in the great organization Gyan Vihar. Dear students, as far as this organization is concerned, this organization is an organization based on a peculiar ideology, on a strong philosophy. Furthermore, as far as this organization is concerned, let me tell you about this thing, that this organization is the first organization which got NBA accreditation in Jaipur. Now the thing is, what is NBA? NBA is an accreditation which used to be given to quality education, for quality education, to quality organizations. And we are the proud organization which we can say that we got NBA even before the NIT of Jaipur. So this is beauty of this organization. Dear students, in the journey of your future journey, all the time you will find one thing, that we are always with you. More than 200 academic and supporting staff will be there for transformation of your personality every time. Every time you will find one thing, that we all are with you. Now the thing is, for what we are with you, that is the most important thing. What journey you are seeking for. So certainly, the motto of your journey is to transform your personality. I know this thing, that you are the most talented stuff, but still honing of the skills are still it is required, and that we will do. Every student is having some qualities. Our learned faculty will always try to find what are those qualities which need to be honed up. And every time we will hone up those skills. And I am very much confident that after completion of your 2 year, 4 years time, you will be immersed in a different personality, a shining personality. This I really wish, this I hope. Dear students, we know this thing very well, that the era which we are living, that is era of knowledge. And the society from which we hail from is knowledge-based society. Everybody tells this thing one thing, that only those people will lead the society. Only those people will lead the community, lead the country. Those who will acquire knowledge. So it's a very big challenge, because every time you find cutthroat competition, and every time you have to see one thing, that you are up to the mark or not. So every time you have to see one thing, every time you have to introspect yourself. And when we talk about one thing, like I have told you that this era is knowledge-based era. But this is not like that, that only this era is knowledge-based era. If we read the history of
the development of human beings. Since 5,000 years noted history, we know one thing, that those communities which stress on the knowledge, like if Greek started giving stress on the knowledge, they started giving a slogan, know thyself. They started leading the world. And when the Indian community started giving focus on the knowledge, they established university like Takshila and Nalanda, and they started giving the slogan, Tamsoma Jyotirgamaya. Indians started lead the world. And when in Baghdad, when the Muslim world started giving one slogan, that the ink of a learned person is more pious than that of martyrs, they'll lead the world. So it is a constant phenomenon. Whatsoever society started thinking about one thing, that okay, this society has to transform on the knowledge base, they started leading the world. Everybody said one thing, the 21st century is century of Asia. Now the thing is how this century will be, the century of Asia. It is a very big challenge. It's a very big challenge. Without acquiring knowledge, if we are thinking that okay, because everybody is predicting one thing, that this century will be century of Asia, and this will turn in the century of Asia, just get it confirmed that the dream will be blurred unless or until we really determine for one thing, that we have to acquire knowledge. Only then this dream can be come true. Otherwise, सपने चकनाचूर हो जाएंगे. If we really want कि ये शताब्दी, this century, इस देश की सेंचुरी हो, इस कॉन्टिनेंट की सेंचुरी हो, आपको बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत पढ़ाई करनी होगी, आपको बहुत ताकत लगानी होगी. मैंने आपको बताया कि केवल यही शताब्दी नहीं, पिछले 5000 साल से केवल वही समुदाय, वही कम्युनिटी, वही देश पूरी दुनिया को लीड करते हैं जो वास्तव में दम लगा के पढ़ते हैं, अपने आप को बदल देते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. मैंने अभी ग्रीस की बात बताई कि जब यूनान, छोटा सा मुल्क यूनान, सोक्रेटिस पैदा करता है, प्लेटो पैदा करता है, एरिस्टोफेनिस पैदा करता है, सुकरात पैदा करता है, तो छोटा सा यूनान पूरी दुनिया को दिशा देता है. और जब हिंदुस्तान के अंदर इस ढंग के लोग पैदा होते हैं तो ये मुल्क भी पूरी दुनिया को दिशा देने का मादा रखता है. और जब मैंने आपको बताया कि अगर बगदाद के अंदर भी गजाली पैदा होता है, इब्न रुशद पैदा होता है, तो वो दुनिया को लीड करते हैं. अब प्रश्न एक है कि पिछले 500-600 साल हम सब लोगों ने एक डार्कनेस की लाइफ लीड की है. अगर हम वास्तव में ईमानदारी से शिद्दत के साथ ये चाहते हैं कि अगली शताब्दी हमारे देश की हो, एशिया की हो, हम सबको जम के ताकत लगानी पड़ेगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ढंग से मेहनत करनी पड़ेगी. वी हैव टू डिटरमिन फॉर इट. इसके लिए आपको वास्तव में ईमानदारी से सोचना पड़ेगा. पीपल से वन थिंग, सक्सेस इज नो शॉर्टकट. कोई भी सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको भी कोई शॉर्टकट नहीं है. इफ यू आर थिंकिंग कि शॉर्टकट से सक्सेस मिल सकती है, तो ये आपका अंधविश्वास है, कभी भी नहीं हुआ, किसी के साथ भी नहीं हुआ. आपको लगातार ये देखनी पड़ेगी. और वैसे भी जब मैंने आपको बोला कि ज्ञान विहार एक अलग ढंग का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द फिलॉसफी, स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी. एंड व्हाट इज दैट फिलॉसफी? वो फिलॉसफी क्या है? तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि एजुकेशन के ऊपर हमारे महान फिलॉसफर्स ने बहुत सालों से, 5000 साल की हमारी ट्रेडिशन है एजुकेशन की, 5000 ईयर लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ एजुकेशन. पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, बट वी हैव दैट ट्रेडिशन. नाउ व्हाट इज दैट ट्रेडिशन? कैसे उसको डिफाइन करें, और आज की दुनिया में, आज के जमाने में वो किस ढंग से रिलेवेंट है, इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा. संस्कृत के अंदर एक मुहावरा है,
एक सेइंग है कि जब किसी से पूछा व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशन, तो ऋषियों ने जवाब दिया सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो आपको फ्री कर दे। विद्या कौन है? जो आपको फ्री कर दे। किससे फ्री कर दे? किससे आपको आजाद कर दे? एजुकेशन किससे आजादी दिलाए? तो एजुकेशन आजादी दिलाए आपकी बुराइयों से। एजुकेशन आपको आजादी दिलाए आपके प्रमाद से, आपके आलस्य से। हर बुरी चीज जो आप में नहीं होनी चाहिए वो अगर हट जाती है तो द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज सर्व। द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज सर्व। तो सा विद्या विमुक्त है कि विद्या वो जो मुक्त कर दे, जो आपको आजाद कर दे। और किससे आजाद कर दे? आपकी बुराइयों से आजाद कर दे। अगर उससे हम आजादी पा लेते हैं तो आप पक्का मान लीजिएगा द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज बीइंग सर्व। इफ दैट इज नॉट बीइंग सर्व, अगर वो नहीं हो रहा है तो आप पक्का मान लीजिएगा स्टिल एजुकेशन हैज टू बी डन। एजुकेशन हो नहीं बाकी। द नेक्स्ट थिंग इज दिस, बहुत सारी चीजें हैं हमारी छोटी छोटी टिटबिट्स के अंदर, कहानियां छुपी हुई है, हर चीज में छुपी हुई है। कॉलेज एजुकेशन में आप आ रहे हैं, नॉर्मली बहुत सारी चीजें देख के, स्पेशली बॉलीवुड की फिल्म्स देख के हम एजुकेशन और स्पेशली कॉलेज एजुकेशन के बारे में रॉन्ग परसेप्शन लेके अंदर घुस रहे होते हैं। स्कूल के जमाने में एक अंकुश था, अब हम आजाद हो गए। बट दोस्तों एक बात याद रखना कि वो आजादी बेकार है जो आपके भविष्य की गुलामी का रास्ता तय कर रही हो। आपको आगे आजाद रहना, पूरी जिंदगी आजाद जीनी है, पूरी जिंदगी गरिमापूर्ण जीवन जीना है। एक बहुत शानदार जीवन, एक बहुत शानदार लाइफ आपके लिए आगे इंतजार कर रही है। मुंह बाहें खोल के खड़ी है, बाहें खोल के खड़ी है वो शानदार जिंदगी। मगर उस शानदार जिंदगी के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, बहुत ताकत लगानी होगी। अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति हुए, अभी कुछ साल पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने बहुत तगड़ी बात बोली, मैं आपको वो शेयर करना चाहता हूं। और वो तगड़ी बात थी कि सपना वो जो नींद उड़ा दे। सपना वो जो नींद उड़ा दे। आप जवान लोग हैं, यू आर यंग पीपल। जॉन एफ कैनेडी ने एक बार अपने स्पीच के अंदर, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने अपने स्पीच में कहा था कि मैं जवान हूं और मैं सपने देखता हूं। हर जवान को सपना देखना चाहिए। आप भी जवान हैं, आपको एक सपना देखना चाहिए। मगर सपना कैसा? और सपना साकार कैसे हो? सपना वो जो आपकी नींद उड़ा दे। अगर आपका सपना आपकी नींद नहीं उड़ा रहा, आपकी रातों की नींद को नहीं उड़ा रहा, तो पक्का मान लीजिएगा आपने एक सपना नहीं देखा। और वो जवानी बेकार है जो सपना नहीं देखे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस ऑकेजन पे आपको इतनी सी बात कहना चाहता हूं। एक छोटा सा मेरा आपको निवेदन है, अर्ज है आपको मेरी, कि सपना देखें। और जब सपना देख रहे हैं तो पूरी ताकत लगा दें, अपने आप को फोकस करें और पूरी ताकत लगा दें उस सपने को साकार करने के लिए। अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं, तो पक्का मान लीजिएगा कि आप, आपके पेरेंट्स, क्योंकि वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर है, और बट नेचुरल मैं और मेरी पूरी टीम, उनको इससे बड़ी खुशी कभी भी नहीं होगी अगर आपके सपने साकार हों। और उन सपनों को साकार करने में हम मीडियम बने, हम इंस्ट्रूमेंट बने, हमारा पूरा प्रयास होगा। इस पूरे आपके सफर के अंदर हमारी पूरी ताकत लगेगी कि आपके उन सपनों को हम साकार करें। उन सपनों को, जिन सपनों को आपके पेरेंट्स ने आपके लिए देखा, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का सपना, एक शानदार ढंग की लाइफ लीड करने का सपना जो आपका एक हक है, उस सपने को साकार करने में हम आपके साथ ताकत लगाएं। ये मैं अपने लर्निंग फैकल्टी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इनके सपने को अगर हम साकार नहीं कर पाते तो हम सबकी यहाँ प्रेजेंस बेमानी है, इररिलेवेंट है, हम सब लोगों का काम करना बेकार है। दोस्तों आगे मैंने आपका भी कुछ और बातें भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। क्या एक मूर्ति आप लोगों ने लगा रखी है, मुझे सौभाग्य नहीं मिला उसको माला पहनाने में, लेट हो गया, आई एम सॉरी। सरस्वती की मूर्ति है, सरस्वती की मूर्ति नॉलेज की गॉडेस मानी जाती है, नॉलेज की देवी मानी जाती है। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉलेज की देवी का वाहन कौन है?
हंसवाहिनी कहलाती है। ये हंसवाहिनी कहलाती है। अब प्रश्न है कि हंसवाहिनी क्यों कहलाती है? प्रश्न यह है कि हंसवाहिनी को क्यों कहलाती है? अगर हम चाहते हैं कि ज्ञान की देवी के ऊपर हम आरूढ़ हो जाएं, ज्ञान की देवी हम पे आरूढ़ हो जाए, तो हमें हंस बनना होगा, क्योंकि हंसवाहिनी है, सरस्वती हंस के ऊपर सवारी करती है। और आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भी सवारी करे देवी, तो आपको क्या बनना पड़ेगा? आपको हंस बनना पड़ेगा। अब हंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके ऊपर हम 2 मिनट चर्चा करेंगे कि ये जिन भी लोगों ने कल्पना की, मुझे पता नहीं सरस्वती होती है नहीं होती, मुझे नहीं पता, आई नो नथिंग अबाउट इट, क्योंकि ये एक बड़ा डिस्प्यूटेड चीज है कि ये सत्य है या असत्य है, ये ट्रूथ है या फॉल्स है। बट जिसने भी कल्पना की, जिसने भी इमेजिनेशन की, उसने बहुत शानदार इमेजिनेशन की। उस इमेजिनेशन को हमें दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने इमेजिनेशन की कि सरस्वती का वाहन हंस होता है। ना हंस, और इंटरेस्टिंग बात यह कि हंस केवल यही कि नॉलेज का करियर नहीं माना जाता। इवन जर्मनी की कल्चर के अंदर भी हंस को नॉलेज करियर मानते हैं। पूरी दुनिया के अंदर हंस को बड़ा पवित्र, एक अलग ढंग का एक क्रिएचर मानते हैं, एक अलग ढंग का प्राणी मानते हैं। अब वो क्यों, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा। और मैं चर्चा करना चाहूंगा हंस की उस कैरेक्टर को हम अपने आप भी इनकॉर्पोरेट करें, हमारी पर्सनालिटी में उसको इनकॉर्पोरेट करें। एंड व्हाट इज दैट कैरेक्टर? कैरेक्टर यह है कि हंस पानी में रहता है। हंस पानी में रहता है, हंस कई बार कीचड़ में भी रहता है, मगर उसके पंख भीगते नहीं है। उसके पंख भीगते नहीं है, उसके पंखों के ऊपर कोई कीचड़ नहीं लगता, उसके पंख के ऊपर कोई मैला नहीं लगता। यही अगर आप कर लें तो आप भी हंस हो जाएंगे, और अगर आप हंस हो जाएंगे तो सरस्वती आपके ऊपर विराजेगी, नॉलेज की देवी आप पे विराजेगी। अब क्या ये दुनिया, ये जमाना जिसके अंदर आप रहते हैं, उसे बहुत सारी बुराइयां हैं। यहां पानी का मतलब मान लिया बुराई है, पानी के मायने बुराइयां हैं। आप घर वालों से दूर आ गए, और इस दुनिया के अंदर आपको बहुत सारी बुराइयां मिल सकती है। पानी बुराइयां, उन बुराइयों में रहकर भी अगर आपके ऊपर वो बुराइयां असर नहीं कर रही हैं, आप हंस हैं। कब हंस आप? कि जब बुराइयों के बीच में रहकर बुराई हम पे असर करना बंद कर दे, आप हंस हैं। जब हम में ये कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, जब ये कैरेक्टर हमारा फॉर्मेशन हो जाता है कि हम बुराइयों में भी रहेंगे तो भी बुराइयां हमको घर नहीं करेंगी, तो आप पक्का मान लीजिएगा आप हंस बन गए। और अगर आप हंस बन गए तो सरस्वती आपके ऊपर आरूढ़ होगी। नॉलेज को आपके आरूढ़ होने से कोई नहीं रोक सकता, मगर जो बुराइयों में रह के बुराइयों के वशीभूत हो जाते हैं, उनको नॉलेज नहीं मिलती, उनको नॉलेज नहीं मिलती। बहुत सारी दुनिया में बुराइयां हैं अभी, क्योंकि बट नेचुरल आपके पेरेंट्स के बहुत सारे कंसर्न होंगे, सर्टेनली मेरे भी कंसर्न है, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूं आप लोगों का। तो मेरे जो कंसर्न है, दुनिया के बहुत सारे इविल्स हैं, हर तरफ आपको इविल्स मिलेंगी, आपको लीकर मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। नाउ द थिंग इज दिस कि इन सब को देखते हुए भी इन सब से जो दूर रह सकता है वो हंस है, और जो हंस है उसी में सरस्वती आरूढ़ होगी। मेरी कामना है, मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सब लोग बुराइयों से बिल्कुल दूर रहें, कहीं बुराई आपके जीवन को छूकर भी नहीं गुजरे, और आप हंस बने और नॉलेज की देवी, ज्ञान की देवी आपके ऊपर बैठे, आप बहुत विलक्षण प्रतिभा के धनी बने। मैंने सपनों की बात अभी अभी आपसे की, मैंने सपनों की बात की कि सपना वो जो नींद उड़ा दे। मगर एक बड़ी शानदार कहानी है, वो कहानी सबने सुनी होगी कि लक्ष्य और सपने कब साकार होते हैं, लक्ष्य और सपने कब साकार होते हैं। उसके लिए हमारे पास बहुत शानदार एक स्टोरी है। अगर आपने महाभारत की स्टोरी सुनी हो, अर्जुन की आंख, किस किस ने सुनी अर्जुन की आंख की स्टोरी? काफी बड़ी मात्रा में लोगों ने सुनी है। ये स्टोरी वास्तव में बड़ी दमदार स्टोरी है, बड़ी दमदार स्टोरी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। द्रोण, गुरु द्रोण सबसे पूछते हैं, निशाना लगाने की बात आ रही है, निशाना लगाना है, एक पेड़ है, पेड़ पे एक चिड़िया लटकी हुई है, और गुरु ने बोला है कि सबको आंख पे निशाना लगाना है, टारगेट तीर कहां लगना है? आंख पे लगना है। गुरु सबसे पूछते हैं तुझे क्या दिख रहा है? कोई कहता पेड़ दिख रहा है, पेड़ पे बैठी चिड़िया दिख रही है।
कोई कहता चिड़िया दिख रही है, अर्जुन एक जवाब देता है और वही जवाब सफलता की कुंजी है। और वो जवाब है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। जब आपको टारगेट दिखने लगता है, केवल टारगेट चलो कुछ भी दिखना बंद कर दे। जब केवल एक टारगेट कि हमें एक शानदार इंसान बनना है, एक ऐसा इंसान बनना है जो मिसाल हो, पूरी कम्युनिटी में मिसाल हो। एक ऐसा इंसान बनेंगे हम कि पूरी दुनिया हमसे इस बारे में सोचे कि साहब एक्स उनका बच्चा, देखिए क्या बच्चा है। मगर वो कल तभी हासिल हो सकता है कि जब हमने जो टारगेट अचीव करने की बात सोची, जिसने एक सपना देखा कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, मेरे को आईएएस बनना है, जिसने सपना देखा मुझे बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट बनना है, जिसने सपना देखा मुझे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, जिसने सपना देखा कि मुझे बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, तो फिर केवल एक चीज दिखनी चाहिए, केवल एक चीज, और वो है आपकी आंख, वो चिड़िया जो फोकस्ड हो जाते हैं, जो अपनी पूरी ताकत को समेट के उस टारगेट को अचीव करने में लगा देते हैं। फिर उनकी सफलता को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। एक कहावत है कि पानी की बूंद भी अगर लगातार चट्टान पे गिरती है तो चट्टान में छेद कर देती है। क्यों कर देती है? पानी की बूंद की कोई ताकत नहीं होती। मगर लगातार आप एक टारगेट से अगर एक जगह स्ट्राइक करते रहेंगे तो पानी की बूंद चट्टान में छेद कर देती है। आप तो इंसान है, यू कैन डू एनीथिंग। बिलीव, अपनी ताकत पे भरोसा करें, अपने दम के ऊपर भरोसा करें और उस दम को पूरे ढंग से एक टारगेट को अचीव करने में लगा दें, एक सपने को साकार करने में लगा दें। उस सपने को अगर आप साकार करने में लगा देते हैं तो आप यकीन मानिए आपके पेरेंट्स ने, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप जो भी यहां पे हमारे पास हैं, आप लोग अपने अपने पेरेंट्स की अमानत है हम लोगों के पास। वी आर कस्टोडियन। हम किस चीज के कस्टोडियन है? आपके पेरेंट्स की अमानत हमारे पास है। और हम ये चाहेंगे कि आपके पेरेंट्स ने जो एक सपना देखा है, बिकॉज आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई आपसे प्यार करता है तो आपके मदर और फादर आपसे प्यार करते हैं। उन्होंने बहुत आकांक्षा से अपने दिल के टुकड़े को इतनी दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर, किसी ने 50 किलोमीटर दूर हमारे पास छोड़ा है। वो क्या सोच के छोड़ा? एज ए पेरेंट मैं इस पेन को अंडरस्टैंड कर सकता हूं, मैं भी पेरेंट हूं, आई कैन अंडरस्टैंड दिस पेन। कि कितना बड़ा पेनफुल चीज है कि आप अपने बच्चे को कहीं आप दूर भेज देते हैं, एक सपने के साथ भेजते हैं। उस सपने को साकार करना आप सब लोगों का पुनीत कर्तव्य है। आप हंस की तरह रहेंगे, बुराइयों से दूर रहेंगे। कहीं अगर बुराइयों के बीच में भी है तो आप ये ब्लेम नहीं करेंगे कि मेरी कंपनी खराब थी, मेरी संगत खराब थी, इसलिए मैं खराब हो गया। नो, दिस इज रॉन्ग एक्सक्यूज। बेहतरीन वो लोग हैं, शानदार वो लोग हैं जो पानी में रहकर भी भीगते नहीं है। आप वैसे रहेंगे, अपने आप को फोकस करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे और ताकत लगा के एक शानदार जीवन जो आपका इंतजार कर रहा है, एक शानदार लाइफ आपका इंतजार कर रही है, आपका वेट कर रही है, उस शानदार लाइफ को आप लीड करेंगे। एक ऐसा गरिमापूर्ण जीवन लीड करेंगे कि हमें भी गौरव हो, हमें भी प्राउड हो आप लोगों पर हम प्राउड करना चाहते हैं। आप यकीन मानिए कि मेरा तो इसमें बहुत बड़ा लालच है। मैंने ग्रीस की जब बात की थी, यूनान की बात की थी, तो वहां एक बहुत बड़े आदमी हुए सोक्रेटिस, सुकरात। दिलचस्प बात यह है, सुकरात के बारे में हम इतने हजारों साल बाद भी इस हॉल में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। और सोक्रेटिस ने एक वर्ड नहीं लिखा, एक लाइन नहीं लिखी, He didn't write even a single line, बट कर एक चीज उन्होंने तक लिखी, उसने एक अच्छा शिष्य पैदा कर दिया, प्लेटो पैदा कर दिया। और प्लेटो ने सोक्रेटिस के लिए ऐसे संवाद लिखे, ऐसे डायलॉग्स लिखे कि आज 2500 साल बाद भी उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा भी लालच ऐसा ही है, हमारा भी लालच ऐसा है कि आप में से कोई सोक्रेटिस बने, आप में से कोई प्लेटो बने। आप में से कोई प्लेटो बनेगा तो निस्संदेह हो सकता है 2-2500 साल बाद लोग बात सुनील शर्मा की भी चर्चा करें। ये मेरा लालच है। आई विश, मैं वास्तव में चाहता हूं, मैं दिल से चाहता हूं आप प्लेटो जैसे महान शिष्य बने, ऐसे ग्रेट आप शिष्य बने, इतने ग्रेट स्टूडेंट बने कि हम सब लोग आपके लिए गौरवान्वित हों। मैं इस ऑकेजन पे हमारी फैकल्टी से भी एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि
बेसिकली क्योंकि स्टूडेंट टीचिंग रिलेशनशिप के बारे में मैंने आप लोगों से बहुत बार निवेदन किया, ये बहुत ही एक पवित्र रिलेशन है। एक रिलेशन को इंग्लिश के अंदर फिड्यूसरी रिलेशन के अंदर हम लोग मार्क करते हैं, एक विश्वास आश्रित संबंध। ये विश्वास आप लोगों के ऊपर किया है इनके पेरेंट्स से, उस संबंध के ऊपर इनको आप लोगों को सौंपा गया है। इस विश्वास के ऊपर हम खरे उतरे और खरे नहीं उतरे, जितना इनके पेरेंट्स ने हमसे उम्मीदें की हैं, हम उनसे उन उम्मीदों से भी बल्कि 21 होके दिखाएं कि ओके आपने ये हमसे उम्मीद की थी, ये हमने करके दिखाया। ये जितनी भी ये यूनिवर्सिटी है, ये आपकी यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर बहुत सारे एजुकेशन से दीगर भी मैं चाहता हूँ बहुत सारी चीजों में आप पार्टिसिपेट करें, रेगुलरली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि एजुकेशन डज मीन ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट इज द बेसिक पर्पस ऑफ एजुकेशन। आई वांट यू कि आप डिबेट्स में हिस्सा लें, मैं चाहूंगा आप लोग डिफरेंट ढंग के परफॉर्मिंग आर्ट्स में हिस्सा लें, मैं चाहूंगा आप स्पोर्ट्स में हिस्सा लें, और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप दुनिया जहान और इन चीजों की जनरल आपकी जो अवेयरनेस है वो भी आपकी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहनी चाहिए। लैंग्वेज हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। मैं ये भी चाहूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज पे भी आप लोगों की पकड़ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग ये मानते हो कि नहीं दिस इज नॉट आवर मदर टंग, बट आप अच्छी तरह समझिएगा ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है एंड वी विल हैव टू मास्टर ऑन दिस लैंग्वेज। इफ यू आर नॉट मास्टरिंग ओवर इंग्लिश तो हम अपनी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं ले करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी का हर हिस्सा गरिमापूर्ण लगना चाहिए, आपकी ड्रेसिंग गरिमापूर्ण होनी चाहिए, आपका बोलने का अंदाज आपका बहुत डिग्निफाइड होना चाहिए, हर चीज आपकी डिग्निफाइड हो, आपकी पर्सनैलिटी का हर हिस्सा, एवरीथिंग, इधर इट इज टेंजिबल इनटेंजिबल, हर चीज आपकी बहुत शानदार ढंग की हो, गरिमापूर्ण हो, और हम इस चीज का माध्यम बने। इसी कामना के साथ आपने मुझे बहुत अच्छी तरह धैर्यपूर्वक सुना, पेशेंट आपने हियरिंग दी। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Any university is a group of its able teachers and students. Let's see what the students have to say about Suresh Gyan Bihar University. Dear students, we are playing a small movie on Suresh Gyan Bihar University. Movie, please.